Only 4. Yes, sir. Now, sir, come back to the original form by using spectacle. So let us Alif start. bhai, you are looking like pilot, and you are going to. So let's start. Yes, sir. Start करते हैं. So this is the second topic of dynamic programming. Longest common subsequence. First of all, what are longest common? What are the common subsequences? Suppose we have two different sequences of characters. Say a subsequence of a given sequence is just a given sequence with some elements left out. Formally, given a sequence X which consists of characters x1, x2, x3 up to xm, and some another sequence Z containing the characters z1, z2, z3 up to zk or ZK. Is a subsequence of X if there exists a strictly increasing sequence I1, I2, I3 up to Ik of indices of X such that all j's 1 to k we have xij equal to z. Means all those characters which came in first string or first set of character in X comes in second string in Z. There may be some characters left in between. It is not like that ki all are consecutive characters, but these all characters will be in increasing order. Suppose we have a string ABCD, then AC is a substring. AB is also substring. Suppose one string is ABCD, another string is ACDE. Then ACD is a common subsequence. B is left. Yeah. Sir. हाँ बोलिए. Yes. सर जैसे Z का है तो जो दोनों सीक्वेंस में जो कॉमन होगा उसको सब सीक्वेंस बोलेंगे क्या? कॉमन होगा बट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. बीच के कैरेक्टर छूट सकते हैं. ठीक है, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे. ऑर्डर में तो सर अगर अल्फाबेट अल्फाबेट भी हो सकते हैं. तो इसमें कैसे पता करें? अल्फाबेट भी हो सकते हैं और आपके न्यूमेरिक नंबर भी हो सकते हैं. अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे. जस्ट वेट. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल Z is BCDB is a subsequence of X ABCBDAB. Here you can see BCDB. BC A is left in this A is left and this B is also left. BCD, this A is also left. So with corresponding index sequence 2, 3, 5, 7. So this is a subsequence of this X here. We will see an example later. Okay. So longest common given two sequences X and Y, okay. we say that a sequence Z is a common subsequence of X and Y if Z is a subsequence of both X as well as Y. This is, for example, X is this ABCDAB and Y is BDCABA. The sequence BCA. ABA. The sequence BCA is a common subsequence of both X and Y. How? You check B, C, and A characters in X. B is here, C is here, and A is here. All are in increasing order. Here also, this B, yes, sir. B, then C, then A. Some middle characters are missing. So this is common subsequence of length 3. सर हाँ बोलिए. सर ये जो A है अल्फाबेटिकल में, तो A तो पहले पढ़ता है ना, तो इसलिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा ना ये. पहला जो X का A है वो छोड़ दिया हमने, क्योंकि इधर सेकंड वाला जो हमारा है इसमें B है. पहला कैरेक्टर B है. सेकंड Y में फर्स्ट कैरेक्टर इज B. Here it is second character. So both are common. So we have taken B. Yes, sir.
ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड करना, उसके बाद सी है। इसका माउस The sequence less than CA is not almost common for longest. yes, so BCA, इससे जैसे ये जो are you listening? My voice is coming or not? Yes, sir. सर एक बार और समझा Yes, दें sir. सर। Okay, देखो X is one string, Y is another string. Okay, Yes, sir. Okay. okay, then we start comparing this first character with the first character of the second string. First character of X is A, first character of Y is B, but both are not same. So B. we move, different both are not same or both are second different. character, Yeah, then we compare second Yes, character then we with move second first character. First character, second character of X with the first character of Y. Okay, Of both are same, so there is a मतलब match. सर second sequence के अंदर Second is B, D, C, A, B. Yes sir. Okay, so B matches. We left A in the first string. B matches. Then after B, we compare C. So D is not matched, so C is matched. So B, C, and finally next is A. So there may be many subsequences. It is not only the one. There may be many other sequences also. Okay? लेकिन सर इसमें जो एक स्टेटमेंट है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो बी सी ए के बाद जो ए आता है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से वो पहले पढ़ता है ए। नहीं, ये वाला है, इस वाले ए की बात कर रहे हैं। That is B, C and A. Okay? तो सर इससे पहले डी भी तो कॉमन होना चाहिए फिर। नहीं, मैं I have told you that this is not only the single sequence. This is not only the sequence. There are many sequences which are common. This is the example, one example. Okay? This is one example. We are simply checking that BCA is a common subsequence of both the string or not. Okay? So yes sir, we move. सर ए कॉमन, सर ए वाला समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे आएगा समझ, आगे जब मैं एग्जांपल पूरा लूंगा ना, then you will understand. Okay? पहले एक बार अल्फाबेटिकल वाइज जब लेंगे सर तो ए टू जेड तक जाएंगे ना हम लोग। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लेंगे पूरा एक एग्जांपल। ठीक है, अभी हम आगे एग्जांपल लेंगे इसका, ठीक है सर, तब समझ आ जाएगा अच्छे से। The sequence BCA is not the longest common subsequence LCS of X and Y. However, since it has length 3 and the sequence BCBA, which is also common to both X and Y, has length 4. The sequence BCBA is an LCS of X and Y, as is the sequence BDAB. BDAB is also a subsequence. So since there is no common subsequence of length 5 or greater, so there may be many common subsequences. But in this problem, we have to find the longest common subsequence. अभी तो मैं आपको problem बता रहा हूँ कि what is the problem. How we'll do it, we will see it later. Okay. So in the longest common subsequence problem, we are given two subsequences, X and Y, and wish to find a maximum length common subsequence of X and Y. Subsequences of X and Y. Okay. So this is Hey, the Rosie, who is Rosie? Who is Rosie? Please remove your background voice. भाई this is not a question. focus Hey, on your topic. Rosie, please remove your background voice. who is this? Gaurav? Who is Rosie? Gaurav. I don't know, sir, who is Yes, Gaurav. yes, Gaurav. हो गया, mute हो गया. So recursive solution of LCS. This is the recursive solution to find the LCS.
Here we find a matrix P in which we fill the entries like this. 0 if I equal to 0 and किसका sound बज रहा है ये? No, see, why are you not गाना listening? बंद करो भाई, Gaurav, bro. गाना बंद करो. So here Cij, entry of Cij is a matrix, 2D matrix. जैसे कल हमने लिया था, एक मैट्रिक्स लिया था मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में. Here also we take a matrix. So Cij will be 0 if I and j both are same as 0. 0. Cij will be Ci minus 1 comma j minus 1 plus 1 if I and j greater than 0 and xi equal to xi is equal to y. means the characters in the row and column are same. अभी हम आगे इसका एग्जांपल देंगे. Otherwise maximum of ci comma j minus 1 or ci minus 1 comma j if I and j both are greater than 0 and xi is not equal to y. Is not equal to y. Yes, this is a recursive solution. Okay, this is the algorithm. Yes, sir. For this, इसी को हमने algorithm form में लिख दिया है, इसी recursive solution. ठीक है, अब हम सीधे example पे आते हैं. Then you will understand. This is the example of LCM. This is given in your book also. So here first string is A B C B D A B. Second string is B D C A B B D C A B A. CABA. Okay, first string we have made a matrix. Okay, in column Okay. we have written X string A B C B D A B. Okay, here in row we have written Y string B D C A B A. Okay, DCA. B D C A B A. Yes, sir. Okay, sir. And these are the values of i's and j's. I की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7. Here j की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6. 0 to 6. ठीक है, तो हमने अभी रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या बताया था? Okay. if I and j, if I equal to 0 or j equal to 0, then Cij will be Then Ci is equal to 0. 0. यही हमने यहाँ पर फिल कर दिया. Here I equal to 0, we have filled all the entries against this as 0. Here j equal to 0, here we have filled all the entries in this column as zeros. Okay, the first row and first column filled according to this. If I equal to 0 or j equal to 0, then Cij will be 0. Got it or not? 0. Okay, now we will fill the entry, next entry. Yes, sir. Got it. We will fill the Yes, next sir. Yes, sir. this entry. If I is equal to 1 and j equal to 1. Here, if I equal to 1, j equal to 1 means both I and j both are greater than 0. Greater Okay. than 0. Yes. In this case, both are And greater. xi and y is equal to And xi xi and is equal to not equal to yz. yj. Xi is not equal to yj. Here. तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए, if xi is not equal to yj, then maximum of ci comma j minus 1 and ci minus 1 comma j. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, we are filling this entry. So maximum of either this or this. This is I minus 1 comma j. This is Sir, yes. Sorry. sir, how to find xi value of xi and yj? xi minus 1 comma j. xi minus 1 comma j क्या है? ये वाली I की वैल्यू क्या है? 1. तो I minus 1 क्या हो जाएगा? Yes, sir. 0. I minus Yes, 1 sir. will be 0 and j की वैल्यू 1. Yes, sir. तो this is the location xi minus 1 comma j. और दूसरी वैल्यू क्या थी? xi comma j minus 1. So this is the value. So maximum of these two will be put here. So here in this case both are zeros.
so no need to change, it will be 0 itself. Okay. Yes sir. Okay. Next we will fill the next entry. Again there is no match. Again there is no match. Here it is D, it is B, A. Here it is A, it is D. So we are filling this entry. Are you getting? Yes, sir. So xi is not equal to yj. So again we will fill maximum of these two. Either this or this, जो भी maximum होगा, we will fill here. Next we will fill this entry. A and C both are not equal. So again maximum of these two values will be filled. Here A is here and A is here. There is a match. Now match के केस में क्या होगा देखिए. If there is a match, if xi equal to yj, then ci minus 1 comma j minus 1 plus 1. ठीक है. तो यहां पर हमारा कहां जाएगा ये वाला ci minus 1 comma j minus 1. This is the value. This value plus 1 will be 0 plus 1 क्या हो जाएगा? It will become 1. Means अभी तक हमारा string match string का size हो गया 1. A and A there is a match. Now we will fill here. Next point, that is I1 5. Sorry. क्या नाम है इस मैट्रिक्स का? C. We are filling now C1 5. First row, fifth column. Okay. C1 5 we are filling now. So there is no match again. Here it is A, it is B. There is no match. So we will fill maximum of these two. This 0 or 1. So maximum is 1. Maximum is 1. So we will fill 1 here. Okay. Are you getting or not? Hello? Yes sir, बिल्कुल. Okay. Now we will fill the entry C16. C16 is this entry. So there is again a match. There is again a match. So what is C I minus 1 comma j minus 1? This location, and what is there? 0. So 0 plus 1 1. ये जो हम एरो लगा रहे हैं, एरो कहां से लगा रहे हैं? एरो वहां से लगा रहे हैं जहां से हमने इस वैल्यू को उठाया है, इसको भरने के लिए. जैसे हमने यहां से 0 plus 1 किया था, so we have kept this arrow, angular arrow. Here we have taken 1 from here, so this arrow was there, and default arrow will be upward. Default arrow will be upward. Now we will fill the entry C21. This entry C21. So here it is B, here it is B. So both are same. Both are same. So C I minus 1 comma j minus 1 will be this value. So 0 plus 1 1. 1 we have filled here. Okay, and arrow we have kept here. Now again we are filling the entry C22. C22, there is no match. Here it is C, it is B. So there is no match. Match nahi hai. So maximum of either this or this. Maximum is this 1. So 1 we have put here. Again there is no match. B and C. So maximum of these two 1. Now A and B. There is no match. And maximum of these two both are same. So we put 1 here. Again यहाँ पर there is a match. Here there is a match in entry C25. There is a match. Here it is B. Here it is also B. So in case of match, we check the entry CI minus 1 comma J minus 1, which is here. ये वाली entry होगी. ठीक है? That plus 1. So 1 plus 1, 2 now. Okay? It is now 2. इसका मतलब 2 character match हो चुके हैं यहाँ पर. Now next entry we will fill. Here it is B. Again not match. Here it is no match. So maximum of this or this. ठीक है? Just upward or leftward. इन दोनों में maximum जो होगा
that will be filled here. So that is 2. Now we fill the entry here. C31. C31 location पे हम भरेंगे entry. So there is no match. Match है इसमें नहीं. Here it is C, it is B. There is no match. So maximum of these two will be filled here. Again, there is no match in next place. So maximum of these two we will fill here. Again, here there is a match. There is a match. Here it is C, it is C. So this value, Ci minus 1 comma j minus 1 plus 1. This is 2. 2 will be here. 1 plus 1, 2. Now at this location, here it is C, it is A. No match. So maximum of either this or this. 2. Okay. Now in next entry, there is no match. So maximum of these two. So both are same. So in default, we take upward value. Okay. Sir, actually, we are filling these boxes with the help of previous algorithm. Yes. On the basis of this recursive solution, we are filling. We are filling this. Yes. सर ये वाला टेबल ना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इस फार्मूले के हिसाब से जो आई जे की वैल्यू, इस वाले फार्मूले के साथ जो आई जे की वैल्यू है, आई एन जे विल बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स आई इज इक्वल टू वाई जे. एक्स आई और वाई जे की जो इसको कहाँ फाइंड करेंगे वैल्यू, एक्स आई और वाई जे की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? Just do one thing. Note this recursive solution on your copy first. Just note down. Okay, sir. Okay. So that while filling the entry, you can check this. Cij will be 0. अभी नोट कर लेंगे कुछ देर में. नहीं कर लो, इसे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. Just note it down. Cij will be 0 if I equal to 0 and j equal to 0. If I equal to 0 or j equal to 0, दोनों में से कोई भी एक 0 है, then you have to fill the entry Cij as 0. सर ये फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है पर इसको नोट करो. आई और जे. यस सर, नोट कर रहा हूँ. नोट कर लो. ये समझ आ रहा है तो वो भी समझ आ जाए. According to OR and gate, the process is going on, I think, sir. Huh? सर नोट हो गया. सबका नोट हो गया? Yes, sir. Everybody noted? Yes, sir. Just a second, sir. Just a second. अभी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं. Let other know. यस सर, हो गया सर. अब हो गया सबका? तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको, एक बार चेक कर लीजिए. Cij will be 0 if I equal to 0 or j equal to 0. Cij will be Ci minus 1 comma j minus 1 plus 1 if I and j both are greater than 0 and xi equal to yj. And third one is maximum of Ci comma j minus 1 comma Ci minus 1 comma j if I and j both greater than 0 and xi is not equal to yj. Okay? Yes, sir. Yes, sir. सर लेकिन जो ये xi is equal to yj है और xi is not equal to yj है, तो इस xi की वैल्यू को हम वहाँ टेबल में कैसे फाइंड करेंगे वो नहीं समझ में आ रहा. हाँ, वो अभी समझ. i और j की वैल्यू अभी समझ. डोंट वरी. हाँ, अब टेबल पे आ जाइए. ओके. यस सर. अब देखिए ये वैल्यू क्या है. ये लोकेशन की वैल्यू क्या है सर? वो फर्स्ट है सर 1. नहीं xi comma yj सर. नहीं, इसकी लोकेशन है C00 because I is 0 and j is 0. मैं मैट्रिक्स की लोकेशन की बात कर रहा हूँ. यस सर. ओके, तो इट इज C00. ठीक है, इट इज C01, C02, C03, C04, C05, C06.
ठीक है। तो हियर आई की वैल्यू क्या है 0, तो हमने सबसे पहली कंडीशन क्या बताई है, चेक करिए नीचे कॉपी में, इफ आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 देन ऑल दीज एंट्रीज विल बी जीरोस, 0। ठीक है। यस सर। इसी तरह से इधर कॉलम में इसकी वैल्यू क्या है इस लोकेशन की, C10 सर 1 1 0 1 0 C20 C30 C40 C10 C50 40 C60 50 60 C70, 70। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया है। यस सर। So all these entry will be Yes, 0 because here j equal to 0. Okay, here j equal to 0. अब यहाँ पर क्या होगा देखिए सर, लेकिन सर जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब i और j दोनों 0 होगा तो ही मतलब 0 फिल करेंगे ना। ये आप चेक करो फिर से, मैंने अभी क्या बताया था, if i equal to 0 और j equal to 0, देखो then c i j is equal to 0। देखो if i equal to 0 और जे इक्वल और टू इस इफ वन कंडीशन मैंने इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसे Both of नोट them. कर लो कि यदि Yes, sir, दोनों में से एक भी 0 है देन इट विल बी 0। यस सर, समझ गया। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ओके सर, समझ में आ गया। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस लोकेशन पे अब i और j की वैल्यू क्या है 1 1, यस सर। ठीक है। नाउ वी विल चेक xi एंड yj। xi की वैल्यू क्या है ये वाली, yj की वैल्यू क्या है ये वाली, बी ठीक है। तो आर दी सेम, अलग अलग है, xi इज नॉट इक्वल टू yj, यस डिफरेंट है ना। अब कंडीशन चेक करो कि यदि सेम नहीं है तो इट इज थर्ड कंडीशन, तो क्या होगा नीचे तो कॉपी सर में ये होगा max c i j minus 1 comma c i minus 1 comma j। मैक्सिमम ऑफ दीज टू, ठीक है ना। Yes, सी sir. सी आई माइनस 1 कॉमा जे कौन सी वैल्यू लोकेशन होगी ये वाली, और सी आई कॉमा जे माइनस 1 लोकेशन होगी ये वाली, ये होगी ना। इसके जस्ट पहले इधर लेफ्ट वाली और इसके ऊपर वाली, ये दो लोकेशन होंगे। Sir, how we are finding the location? Can you please tell me one time more? सी आई माइनस 1 कॉमा जे, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये वाली है सारी 0 1 2 3 4 5 6 7। तो Yes, sir. in this row the value of i is 1, तो i minus 1 क्या हो जाएगा 0, Yes, sir. यस है सर। ना। तो c i minus 1 means 0 कॉमा j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 0 कॉमा 1 ये वाली वैल्यू लोकेशन है। यस सर। तो c 0 कॉमा 1 विल बी 0, तो इसके अंदर वैल्यू फील्ड है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. I got it. हाँ, तो इसी तरह से हम सारी वैल्यूज को फिल करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे की वैल्यू फिल करके देखिए, मैंने 0 1 2 की वैल्यू फिल करा दी थी। थर्ड में जाइए, थर्ड वाली रो में कुछ चेक कीजिए इसे, जहां भी मैच होगा वहीं पर ही वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज जस्ट ऊपर वाली या इसके लेफ्ट वाली, जो भी दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम फिल कर देंगे। चेक कीजिए सर इसके लिए कैसे कर दें सर? कॉपी पे बनाओ इसे, राइट ऑन योर कॉपी। सर कॉपी बनाने लगेंगे सर, टाइम खत्म हो जाएगा ना फिर। टाइम कहाँ खत्म हो जाएगा, तुम भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ, टाइम खत्म नहीं हो रहा। सर जैसे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे सर हम i और j की वैल्यू को डिक्लेयर एक बार कर लेंगे, जैसे i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 2, ऐसा एक बार जब डिक्लेयर कर लेंगे सर, तो जब फार्मूले में हम लोग डालेंगे तो c i माइनस 1 कॉमा j माइनस 1, तो इसी i की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना और j की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना सर। जो भी करंट वैल्यू होगी उसके बेस पर। यहाँ देखिए एल्गोरिथम तो देखिए, वही वैल्यू पुट करके सर लोकेशन डिफाइन करेंगे। हाँ इसका एल्गोरिथम चेक कीजिए कैसे चल रहा है, देखिए एल्गोरिथम एक बार चेक कर लीजिए, चलिए ठीक है। एल्गोरिथम चेक कर लीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ n विल बी
length of y string means first string की length Length of y. secondary string की length m1 n1. Then for I equal to 1 to m to c I comma 0 will be 0. हमने क्या किया, उन सारी वैल्यूज को 0 पुट कर दिया जहां पर j की वैल्यू 0 है, 0. इसी तरह से for j equal to 0 to n c 0 comma j will be 0. फर्स्ट कॉलम को हमने 0 कर दिया पूरा. Now for I equal to 1 to m and do for j equal to 1 to n. नेस्टेड लूप हमने लगाया यहाँ पर. If xi equal to yj, वही कंडीशन लिखी हमने तो वहां थी. सेकंड वाली if xi equal to yj then c of ij will be c I minus 1 comma j minus 1 plus 1. ठीक है, +1. और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको भी हमने उसमें मर्ज किया हुआ है एरो वाला मैट्रिक्स. तो दैट विल बी b. b of ij will be this arrow. ये मैच के केस में एंगुलर वाला एरो. else if c I minus 1 comma j is greater than equal to c I comma j minus 1. यदि हमारी यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो if c I minus 1 comma j is greater than equal to c I comma j minus 1, then c of ij will be c I minus 1 comma j. means ये जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया. c I minus 1 का ऊपर वाली वैल्यू. ठीक है, एरो हमारा ऊपर वाला है. else c of ij will be c I comma j minus 1. और हमने वैल्यू पुट कर दी इस वाले b वेक्टर में लेफ्ट पैरेंथेसिस में. ओके, समझ आ गया? अब आ जाइए इस पे. हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ गया था. थोड़ा थोड़ा नहीं, अभी पूरा बनाएंगे, अभी पूरा समझ आ जाएगा. बिल्कुल सर. अब इसकी एंट्री फिल कीजिए, जहां प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए. चलिए सब लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए एंड फिल द एंट्रीज. अभी पता लग जाएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही. ठीक है सर. चलिए भरिए. दिल्ली. हाँ हो रहा है सर, अभी बना रहे हैं. हाँ बनाइए, जल्दी से भरिए तो फटाफट हो जाएगा. यदि ये सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा से लॉगिन कर लेना. यस सर. ठीक है सर, दोबारा से कर लेंगे. हाँ क्योंकि 40 मिनट का होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ. ये करना पड़ता है. हाँ बाय डिफॉल्ट.
बाय डिफॉल्ट ऊपर वाली साइड का एरो, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने ऊपर वाले में लिया ना। सर हाँ बोलिए। सर जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 3 लेंगे और j इक्वल टू 3 लेंगे। I3 J3 ओके एट दिस लोकेशन, i ये वाली लोकेशन। j इज इक्वल, यस सर ये वाली लोकेशन। हाँ बोलिए। तो i j इज ग्रेटर देन 0 और सर यहाँ पे c है, यहाँ पे भी c है, तो xi एंड x y j बोथ आर सेम। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे भरेंगे। If xi equal to yj, then the value of Cij will be filled on the basis of this location Ci minus 1 comma j minus 1 plus 1। यस सर। ठीक है। तो सर उस लोकेशन के बेसिस पे क्यों भरा जाएगा सर? क्योंकि देयर इज अ मैच, ये एल्गोरिथम है। यदि मैच है तो उस लोकेशन के बेस पर हम +1 कर लेंगे, और यदि मैच नहीं होता तो इस लोकेशन पे जो होता वो और इस पे दोनों में जो मैक्सिमम होता उसको हम यहाँ फिल कर देते। तो सर इसके बेसिस पे अगर जैसे यहाँ पे 1 है सर, हाँ। जैसे ये वाला जो 1 है, हाँ। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे 2 कैसे फिल करेंगे सर? ये i माइनस ये वाली लोकेशन Ci minus 1 comma j minus 1 plus 1 जो हमने यहाँ दिया ना, ये वाला, ये यस सर सेकंड नंबर पे। हाँ Ci minus 1 comma j minus 1 लोकेशन दैट +1। ठीक है। तो हमने यहाँ से उसको, क्योंकि यहाँ मैच, ठीक है। बाकी और भरिए आगे की वैल्यूज। Fill the other values. अनुकूल। यस सर। हाँ हो गया। हाँ सर मैंने उतार लिया सर। उतार लिया, खुद करना था, उतारना नहीं था सर। खुद नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ आ रहा बताइए। सर इसको हाँ बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है। सर मुझे तो शुरू से समझ में नहीं आ रहा है ग्राफ कैसे बना हुआ है। ग्राफ कहाँ बना हुआ है?
नहीं सर, ये जो टेबल बनी हुई है सर, तो मैंने उसको पूरा नोट डाउन कर लिया है, और जो आपने स्क्रीन शेयर करी उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, उसको दोबारा एक बार पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा सर। देख लो, यदि क्योंकि कोई सर एल्गोरिथम सर एकदम तो आती नहीं है ना। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं भी बता सकता हूँ, वरना तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। ये देखिए सर, अभी जब समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम कैसे बता सकता हूँ? जैसे समझ में आ जाएगा मुझे, जहाँ प्रॉब्लम लगेगी आपसे पूछ लूंगा सर। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चीज समझ नहीं आ रही है, मैं भी बता दूंगा ना। चीज समझ नहीं आ रही सर यहाँ पे वैल्यू फिल करने वाला समझ में नहीं आ रहा सर कि वैल्यू कैसे फिल करेंगे सर। वैल्यू फिल कर रहे हैं आप इसके बेस पर, ये जो हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन दिया इसके बेस पे फिल कर सिर्फ। सर ये जो रिकर्शन वाला सॉल्यूशन है सर, तो इसमें अगर सी आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन प्लस वन है, तो इसमें आई और जे की करंट वैल्यू को जो फिल करेंगे तो सी 2,2 हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। C22 प्लस वन C33 के लिए यदि भर रहे हैं तो यस सर। तो फिर हम वो वाले लोकेशन पे आएंगे जिस लोकेशन पे I3 और IJ का मतलब वो हो रहा है, कट हो रहा है सर, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उस वाले लोकेशन पे हम आएंगे, यहाँ 2 वाले लोकेशन पे सर। हाँ 2 वाले लोकेशन पे आएंगे तो फिर यहाँ से हम लोग कैसे यहाँ पे वैल्यू 2 कैसे फिल करेंगे सर, और इसके बेसिस पे कैसे फिल करेंगे, यही नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, जैसे हमने अभी C33 पर आए तो यहाँ पर मैच है ना, XI = YJ हो रखा है, यहाँ पर देखिए C है ये, और यहाँ पर भी हमारा C है। ओके, सेकंड वाला इस लोकेशन के लिए है, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक। तो इस लोकेशन पर CI-1, J-1 ये वाली लोकेशन है, और इस लोकेशन पे हमारा 1 है, तो दैट प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इससे हमने यहाँ भर दिया। तो इसमें हमेशा ये जो अगर सर ये सेकंड वाला आएगा रिकर्जन का, सेकंड वाला सोल्यूशन जब आएगा हम लोगों के सामने, तो हमेशा ये लोकेशन से पहले वाले विकर्ड के पहले वाले पोजीशन को I-1, J-1 मैच के केस में I-1, J-1 वाली वैल्यू देखेंगे उस लोकेशन पर, यानी कि 2,2 का ले लेंगे सर, C2,2 का। यदि 3 के लिए है तो 2 लेंगे। यदि सपोज कीजिए 3-4 के लिए है, सुनो मेरी बात, सपोज 3-4 के लिए है तो 3-2 4 - 1 3, तो C23 के लिए देखेंगे। हाँ बोलिए क्या करें। जैसे सर यहाँ पे एक बार वो सर फार्मूला वाला पेज लाइए, रिकर्जन फार्मूला वाला सर। जैसे CI-1, J-1 प्लस 1 है, तो जब हम लोगों के सामने ये वाला सोल्यूशन आएगा तो यहाँ पे I के और J के करंट जगह पे करंट वैल्यू 3 रखेंगे तो C2,2 हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना C2,2 पे कौन सी वैल्यू है, तो C2,2 पे जो वैल्यू होगी +1 फार्मूले में है, बस +1 ये वैल्यू ये दोनों ऐड करके उस करंट लोकेशन पे फिल करना है, बस मतलब 1 ही ऐड करना है बेसिकली, 1 ही ऐड। हाँ यस सर, बस। अच्छा सर, आ गया। और इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं, कल वाले से आसान है परसों वाले। और अगर सर जैसे 3,4 का लेंगे तो जो हम लोग जिस बेसिस पे लिए उसके एक इधर ले लेंगे, मतलब 4 वाले लोकेशन पे चले जाएंगे। 3-4 के लिए यदि हमें भरना है तो 3 - 1 और 4 - 1, तो C23 के पे जो है उसको देख लेंगे यदि मैच है तो। मैच नहीं है तो उससे पहली वाली लेफ्ट वाली और उसके ऊपर वाली CI-1, J और CJ-1 I, J-। तो सर यहाँ पे जो वैल्यू अगर लास्ट में और वैल्यू जो फिल हुए सर 4 आया है 3 आया है, तो ये कैसे इतना इंक्रीज हुआ है सर, एक ये वाला बताइए। यहाँ पर मैच होता जा रहा है ना हमारा। अब देखो जैसे इस वाली लोकेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या लोकेशन है C4,5 अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर B है और यहाँ ऊपर भी B, ठीक है, इसका मतलब मैच है। अब मैच के केस में वैल्यू कहाँ से बनेंगे, इस वाली वैल्यू से, दिस +1 2 + 1 3 हो, ठीक है ना। तो आप यदि देखना चाहो तो इतने के अंदर, इतने मैट्रिक्स में यदि आप देखोगे तो दिस BCB और इधर भी BCB है ना, ये सब सीक्वेंस मैच हो चुकी है, इसलिए 3 लेंथ की आ गई। अब सर परफेक्टली एकदम क्लियर हो गया सर। बहुत आसान आ गया टेबल एकदम परफेक्टली। इसी तरह और जो हमारा सॉल्यूशन होगा, यदि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का साइज चाहिए तो वो हमारा इस लास्ट लोकेशन पे मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम साइज, दिस इज द मैक्सिमम साइज, दैट इज 4 इन दिस केस, ठीक है। और यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है
there may be more than one longest common subsequence. ठीक है ना, एक से ज्यादा longest common subsequence हो सकती है, इसलिए एक से ज्यादा जगह पर हमारा 4 आ रहा है। और सर लग हाँ सर, हम लोगों को जब प्रॉब्लम दिया जाएगा तो x और y के ऐसी फॉर्म में दे दिया जाएगा सर, x और y के फॉर्म में, और हम लोगों को ऐसा टेबल बना करके आपको जो प्रॉब्लम दी जाए, आपको जो प्रॉब्लम दी जाएगी वो मैं भी बता रहा हूँ कैसी आएगी। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, ये आपको करनी है। डिटरमिन एन LCS ऑफ दिस एंड दिस, ये हमारी x हो गई और ये y हो गई। यस सर, ठीक है, इसको आप करके देखिएगा। और जो पर्सन ने प्रॉब्लम की थी लॉन्गेस्ट कॉमन सर I और j का तो सर वैसे ही I j का वो 0 1 2 3 4 5 6 जितने रो और कॉलम होंगे सर उतने नंबर्स हम लोग बना देंगे। बिल्कुल x I और x j के जगह पे 1 0 0 1 0 1 0 1 ऐसा मतलब सीरियल वाइज लिखते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये x है, x वाली लोकेशन में ये लिख दीजिए, यहाँ पर अभी ABCD टाइप के लिखे थे, और y वाले इसमें ये लिख दीजिए। हाँ सर ABCD की जगह 1 0 1 दे गए। हाँ बस, अब इससे पता चल जाएगा ठीक है सर, ठीक है। कितने रो होंगे अपने टेबल में। तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना, तो उसका साइज निकल आएगा, और साइज के बाद जो निकलेगा देखिए ये दूसरा एल्गोरिथम है, उसी का ही दूसरा, एक तो ये था, इससे हमारा साइज निकल के आ रहा है। दूसरा है उसको प्रिंट करना लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस को, उसके लिए हमारा ये जो दूसरा बी मैट्रिक्स हमने लिया है उससे ये चलेगा। जैसे कल हमने लिया था पैरेंथेसाइजेशन के लिए, यहाँ पर हमारा जो एरो वाला मैट्रिक्स है दूसरा, ये उससे प्रिंट कर देगा। इसको आप करके देखेंगे तो इट कैन इजीली बी, यू विल फाइंड द। हाँ, और सर जब भी हम नंबर फिल करेंगे एक कॉलम में इंडेक्स में, तो जिसके बेसिस पे हम फिल कर रहे हैं उसकी तरफ एरो लगा देंगे उस इंडेक्स से। हाँ बिल्कुल सही समझो, यू गॉट द पॉइंट। जिधर से भी हमने वैल्यू उठाई है, जिधर से भी हमने वैल्यू को उठाई है, चाहे +1 किया है या सेम वैल्यू ली है, उधर की साइड में हमारा एरो बन गया। ये हमने यहाँ पर इसमें दिया भी है, यहाँ पर एरो का ये रंग देख रहे हैं। और सर ये जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस का जो साइज है वो लास्ट में जो निकल के आएगा, जैसे इसमें 4 आया है, हाँ। तो ये तो एक आंसर हो गया। लेकिन जब हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, तो सर उसमें कैसा होगा सर? इसमें हम लोगों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस कौन सा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए वैसा सेम क्वेश्चन था मेरा इधर। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक मिनट में जरा इसे इरेज कर दें। हाँ देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, अब तो यहाँ से शुरू करेंगे जहां भी हमारा कॉर्नर्स, ठीक है, जहां हमारा मैक्सिमम साइज आ रहा है वहां से शुरू करेंगे। अब इसमें एरो कहाँ का दिया है? ऊपर को दिया है। एरो कहाँ दिया है? ऊपर को दिया है। हम ऊपर वाली लोकेशन में जाएंगे, ठीक है। और जहां पर भी हमारा एंगुलर एरो मिलेगा, एंगल वाला, ठीक है, यहाँ पर हमारा एंगल वाला मिल रहा है इस वाली लोकेशन में। हाँ सर मिल रहा है। तो एंगल वाले केस में यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हमने इस ए को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आए, ओके। अब यहाँ पर एंगल ऊपर को है, ऊपर को है तो हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ फिर से एंगुलर मिला, एंगुलर मिला, इसका मतलब यहाँ मैच होगा, ठीक है। बी है, बी है दोनों, बी है तो बी हमारा ये हो गया, ठीक है। बी के बाद हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से हम इस वाले लोकेशन पहुंचे, यहाँ फिर से एंगुलर है, एंगुलर एरो है, इसका मतलब सी हमें यहाँ से मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए, इससे हम इस वाले लोकेशन पे पहुंचे, यहाँ हमें बी मिल गया। बी सी
BA. This is the longest common subsequence of X and Y. So B, C, B, A. इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर भी B, C, B, A. इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, दोनों कॉमन। अब सपोज कीजिए हमने यहाँ से शुरू किया होता है, अब सपोज हमने यहाँ से शुरू किया होता है, तो हमारी जो LCS है वो अलग आएगी। यहाँ पर हमारा क्या मैच है? B, दोनों साइड में B है, यहाँ पर हमारा पहले B आएगा। ठीक है, इससे हम फिर यहाँ आएंगे, एरो इधर है, यहाँ से हमारा क्या कॉमन है? A, यस सर। A हमारा ये हो गया। ठीक है, A से फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर, यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ पर आए, एक मिनट पूरा हो। यहाँ पर हमारा क्या मैच है? C, और C के बाद हमारा क्या मैच है? B। तो BCAB और BCBA, ये दो हमारी LCS में। Yes. They both are different. Both are different, but both are longest common subsequence. Sure. ठीक है? सर नीचे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस साइज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो सबसीक्वेंस लिख रहे हैं उसको उल्टा लिखते जा रहे हैं सर। मतलब पहले बी सी, मतलब वो जब आप इस वाले इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे, यू विल फाइंड द वे। यहाँ पे फिर लास्ट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसको आप चेक कीजिएगा, इसको चलाने, इसको चेक कीजिए, जब हम इसे रिकर्सिवली कॉल करेंगे वो इसी तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए अब आपकी ये दोनों प्रॉब्लम है, ये दोनों मैं आपको क्लासरूम ऐप पे अपलोड कर देता हूँ अभी, आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर एक्सटर्नल में आएंगे ना सर ये? हाँ, एक्सटर्नल पेपर में आएंगे ना सर ये? एक्सटर्नल पेपर